Hello students. So today we are going to see the introduction of our textbooks. This is our paper 1 textbook. So in this we are going to study 9 lessons. So these are the 9 lessons that we are going to study, students. We'll be seeing what all things we are going to study in each and every lesson over here. So let's look at that part. So we are going to see the content of each and every lesson that we are going to study. Now the very first lesson is angle and its measurements. Now angle you have already studied in your schools. अपने schools में angles पढ़ा हुआ है. But here we are going to see how to write the angle, that we are going to understand its measure. Next we are going to see what are the different systems of measurements of the angles and what is the relation between them. Then we are going to see how to convert the angle from one system to another system. So these are the things that we are going to study. So far you have seen the angles only in degree. Now here we are going to see in circular form how the angles are written. So that is the radian measure that we are going to study. And then we'll see what is the relation between both of them. So this is what we are going to study in angle and its measurement. Next is trigonometric functions. Now you have already studied a lot of trigonometry, right? In your 10th standard, 9th standard, you have seen your trigonometric functions, sine theta, cos theta, tan theta, cosec, sec and cot theta. Now here also we are going to first understand the definition of a trigonometric function. So how is the trigonometric function of the angles? Now we know you have already studied about 30 degree, you have seen about 45 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree. So this year also we'll be studying all these angles, but we are going to see how we have got these angles, how we have got the values of these particular angles. So that is how to find the trigonometric function of certain angles. So this is thing that we are going to study. Next is how to draw the graph of a trigonometric function. तो जितने भी हमारे पास फंक्शन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, तो उनका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द trigonometric functions. So this is all the things that we are going to study in the trigonometric function. तो trigonometric function ये वाला जो lesson है, there are two lessons which are similar. Here also you will see there are trigonometric functions, right? So both the lessons are different than each other. The first lesson is similar like what you have studied in your 10th standard. ये आपने 10th standard में जो कुछ learn किया हुआ है trigonometric functions के बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में जितना भी आपको आता है वही सब आपको यहाँ पे वापस से रिवीजन है. दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर 10th स्टैंडर्ड एंड लिटिल बिट मोर विल बी स्टडिंग इन दिस लेसन. ओके, तो आपको तो पता है कि साइन ऑफ 30 डिग्री, वी नो हाउ मच इज साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. दिस वी नो. अब ये क्यों है, कैसे आया, दैट वी डोंट नो. वी हैव जस्ट टेकन द टेबल और वो टेबल के हम यूज करते हैं और लिख लेते हैं साइन 30 इज 1/2 एंड सो ऑन. लेकिन ये क्यों आया, कैसे आया, ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जो टेबल आपने लर्न किया था वो वैल्यूज कैसे आए, दैट एवरीथिंग विल बी स्टडिंग इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Now the next lesson is trigonometric functions of compound angle and factorization formula. अब आपको मालूम है कि साइन ऑफ 90 डिग्री, आप साइन ऑफ 90 डिग्री को वी नो व्हाट इज साइन ऑफ 90. साइन ऑफ 90 इज 1, राइट? लेकिन अगर मैंने आपको पूछा हाउ मच इज साइन ऑफ 75 डिग्री, देन यू डोंट नो द आंसर, राइट? बट इफ आई कैन राइट दिस एंगल 75 डिग्री, 75 डिग्री को अगर मैं लिखती हूँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये एंगल वैसे ही रहेगा साइन ऑफ 75 डिग्री. लेकिन आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. तो ये जो हमने लर्न किया है एडिशन, हमने क्या किया, ये वाले एंगल को हमने बाइफरगेट किया, दैट वी हैव डन इट इन कंपाउंड फॉर्म. इसको हमने कंपाउंड फॉर्म में डाला. अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स. तो जैसे यहाँ पे हमने 75 को लिखा 45 प्लस 30, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम स्टडी करेंगे इन दिस पार्ट. नेक्स्ट इज फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ
मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। जैसे आपके पास साइन ऑफ 30 डिग्री है और मैंने आपको पूछा साइन ऑफ 50 डिग्री, इफ आई एम आस्किंग यू दिस देन आई डोंट नो हाउ टू फाइंड इट, राइट। आपने ये स्टडी नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखोगे ये वाला एंगल 30 डिग्री है, 30 का एग्जैक्टली हाफ हो जाता है 15, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये सब मल्टीपल हो गया है। तो अब हम स्टडी करेंगे ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। या फिर अगर मैंने आपको पूछा हाउ मच इज साइन ऑफ से 120 डिग्री, तो ये अगर देखे 120 डिग्री 30 का मल्टीपल है, या फिर आप देखोगे 120 60 का भी मल्टीपल है, राइट, 2 टाइम्स हो जाता है ये। Then we are going to see how to find these values by using the multiple and the submultiple angle formulas that we are going to study. Next is express the sum or difference of two trigonometric function as compound as a product. तो अगर हमारे पास इस तरह से एंगल दिया है, साइन ऑफ 45 डिग्री दिया है प्लस आपको दिया है साइन ऑफ 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो आप इसका वैल्यू पुट करोगे, आप इसका वैल्यू पुट करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको पूछा हाउ मच इज साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री, तो देन यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू, राइट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं दिस। अब हम क्या करेंगे, ये जो सम दिया है या फिर माइनस पूछा है, सम या फिर सब्ट्रैक्शन पूछा है, देन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, दैट इज द प्रोडक्ट। इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन ऑफ आवर गिवन एंगल्स। या फिर ये जो हमारे एंगल्स है इसको हमने फैक्टराइज किया यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसको डीफैक्टराइज करेंगे। दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। Then we are also going to learn some rules of trigonometric ratios of angles of a triangle. So there are few things that we are going to study over here. If you are given a triangle, any triangle, if you are given like this, not a right angle triangle, फिर इसके लिए अगर आपको trigonometric ratios find out करने हैं तो हम कैसे find out करें, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। Next we come to the lesson determinants and matrices. Now determinants you have already studied in your schools. आपने determinants already school में पढ़ा हुआ है। You remember you have seen determinant of A, B, C, D. This you have studied. इसको अगर आप वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाता है A into C minus this is B into D. That is you are cross multiplying the term and then finding the difference between the term. तो ये हो गया हमारा determinants that you have studied. अब ये तो आपने सिर्फ ऑर्डर 2 देखा है। ऑर्डर 2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट आपने सीखा हुआ है। दिस ईयर वी आर गोइंग टू सी ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट, दैट इज 1 2 3 सम डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फॉर्म। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 रो है और यहाँ पे 3 कॉलम है, तो अगर ऐसे डिटर्मिनेंट दिए हैं तो इनका कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम सीखेंगे व्हाट इज इन determinant. So finding the value of a determinant, then reduce the determinant to a simple form, solving the linear equations in 2 or 3 variables. ये आपने किया हुआ है, 2 variables वाला आपने किया हुआ है। You might be remembering the Cramer's rule. क्रैमर्स रूल आपने लर्न किया हुआ है। यू कैन इफ यू आर गिवन अ डिटर्मिनेंट, आप पहले उसका डी वैल्यू निकालते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द होल डिटर्मिनेंट यू फाइंड आउट। सो इफ यू आर गिवन इक्वेशन से ax प्लस लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यू आर गिवन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, और आपको फाइंड आउट करना है d, तो आप लिखते हो इसको दिस इज a1 b1 c1 सॉरी दिस इज a2 b2, and then you find out what is the value of d, then you find out what is dx, you find out what is dy. I hope you remember all these things. Okay, then d का dx का वैल्यू मतलब क्या होता है, जो भी x के कोफिशिएंट है उसको आप चेंज करके आप डालोगे द कांस्टेंट्स। जब आप dy फाइंड आउट करोगे तो आप y के कोफिशिएंट्स निकाल दोगे, उसके जगह पे आप डालोगे कांस्टेंट, तो आपको मिलता है dx का वैल्यू dy का वैल्यू। And when you want to find out the value of x, you write this as dx divided by d, and you can say y is equal to dy by y by d. So these all things you have studied. लेकिन ये आपने learn किया है for order 2.
लेकिन अगर ऑर्डर 3 के लिए ऐसा अगर डिटर्मिनेंट आपको दिया है तो इसके लिए ये क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे इन सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। देन वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब ये लेसन में नेक्स्ट पार्ट आता है मैट्राइसिस। नाउ लेट्स लुक एट मैट्राइसिस। नाउ हियर इफ यू लुक एट द वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन अगर मैंने इसको डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट दैट इट इज ए बी सी एंड डी, अगर इस फॉर्म में मैंने इसको डाल दिया, देन व्हाट हैपेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हो जाता है। डिटर्मिनेंट में आप क्या कर रहे थे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल के आप इसका एक वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन मैट्रिक्स में आप वैसे नहीं निकाल सकते। देन हाउ टू सॉल्व दिस मैट्राइसिस, ये मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन मैट्राइसिस। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डू अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसिस। मतलब अगर दो मैट्रिक्स दिया है तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, these all things we are going to study. Even multiplication of two matrices will be seeing this year. So this is up to lesson number 4. The next lesson that we are going to study is straight lines. अब स्ट्रेट लाइंस में क्या है, स्ट्रेट लाइंस ऑल्सो यू हैव सीन अंडरस्टैंडिंग द लोकस एंड इट्स इक्वेशन, ये आपने स्टडी किया हुआ है आपके 10th स्टैंडर्ड में। स्ट्रेट लाइंस के बारे में भी आपको याद होगा, आपने ये फॉर्मूला लर्न किया होगा, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दिस यू हैव स्टडीड। देन यू हैव ऑल्सो सीन y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 एंड मोर फॉर्मूलेज यू हैव लर्न। तो ये जो आपने लर्न किया है, दीज वर इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो इस साल भी हम वही फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स है। ये फर्स्ट वन, इसको हम बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म एंड सो ऑन। दीज ऑल थिंग्स विल बी स्टडिंग इन डिटेल। अब लोकस के बारे में बताऊं, लोकस के बारे में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न किया है। यू माइट रिमेंबर दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला? Distance formula, that is, say you are given a point whose coordinates are say x1 comma y1 and there is a point b whose coordinates are say x2 comma y2, फिर आप find out कर सकते हो distance between a b point, right? So distance between a b point, you can say this value is root of x1 minus x2 whole square plus this is y1 minus y2 whole square. You remember this formula. उसके बाद और भी काफी सारे फॉर्मूले हमने लर्न किए थे। सो दीज ऑल थिंग्स, ये जो आपने स्टडी किया था उसका वापस से रिवीजन है यहाँ पे इन द लेसन लोकस एंड इट्स इक्वेशन। सो लोकस एंड इट्स इक्वेशन इज नथिंग बट वॉट एवर यू हैव स्टडीड बिफोर coming to 11th standard is same over here. Next, that is straight line. As I told you, these are the things that you have also seen last year. Then we have to find out what is the angle between two straight lines and the distance of a point from the line. This is some new part that you will be seeing. अगर दो लाइन दिया है तो दोनों के लाइन के बीच का कितना एंगल है, ये कैसा कैलकुलेट करेंगे। या फिर आपको एक लाइन दिया है, एक पॉइंट दिया है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट कम्स द लेसन सर्कल। अब सर्कल का कंस्ट्रक्शन वगैरह तो आपने काफ़ी सारा सीखा हुआ है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, दैट इज नथिंग बट द लोकस। किसी भी इक्वेशन अगर कोई गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं लोकस, दैट इज ओवर हियर। नेक्स्ट इज लर्न एंड यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। सर्कल के काफी सारे प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे अगर सर्कल दिया है तो उसको अगर टेंजेंट निकालनी है तो वो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन सर्कल्स। नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में हम स्टडी करते हैं पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। नाउ व्हाट इज दिस कोनिक सेक्शन? अगर आप किसी कोन लेते हो, इफ यू टेक एनी कोन,
कोन तो आपने देखा होगा, एंड सपोज यू डिवाइड द कोन इन डिफरेंट, आप इसको कट कर रहे हो, यू आर कटिंग द कोन इन डिफरेंट एंगल्स। तो अगर आपने इसको ऐसे स्ट्रेट कट कर दिया तो आपको एक सर्कल मिलता है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा स्लैंट कट कर दिया तो आपको एक इलिप्स मिलेगा। इफ यू कट इट इन दिस पार्ट, अगर आप ऐसे कट करोगे तो आपको मिलेगा यू आर गोइंग टू गेट अ पैराबोला। इफ यू आर गोइंग टू कट इट विद डिफरेंट एंगल, यू आर गोइंग टू गेट अ हाइपरबोला। सो दिस इज हाउ, ये इसको बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अब यहाँ पे हम लर्न करेंगे व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ द कोनिक सेक्शन। अगेन दीज आर गोइंग टू satisfy some given condition. Next, how to use the properties of the conics, and we are going to learn about it. Next is find the equation of the tangent to the conics. अगर ये conics हमें दिया हुआ है तो ये conics के लिए अगर हमें tangent draw करनी है तो tangent कैसे draw करेंगे. So this is how we are going to study about the conic section. The next part of the lesson is the measures of dispersion. ये statistic है. These two lessons are from statistics. Now in statistics, again measures of dispersion, calculating the range, deviation, standard deviation, variance find out करना है. These are the three things that we are going to calculate in measures of dispersion. इसका पूरा डिटेल हम जब ये लेसन करेंगे तब आपको बताऊंगी. लेकिन अगर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, ओके, सपोज यू आर गिवन अ डेटा, और वो डेटा को यूज करके आप फाइंड आउट करते हो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो कहाँ से कहाँ तक ये डेटा दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द गिवन डेटा. अब अगर हमारे पास कोई डेटा दिया है, अगर ये स्टैंडर्ड डेटा है तो उसका जो मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, वो सब सेम होता है, राइट. द वैल्यूज आर इक्वल. मीन इज इक्वल टू, यू कैन से मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. अगर स्टैंडर्ड डेटा है तो एग्जैक्ट एकदम बराबर डेटा मिला तो ये वैल्यू हमेशा सेम मिलते हैं. लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा ये ऐसे नहीं मिलता, कोई ना कोई बीच में डिफरेंस होता है. ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द डेविएशन. अब ये डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये होता है हमारा मेजर्स ऑफ दिस डिस्पर्शन. सो हियर वी आर गोइंग टू सी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वी आर गोइंग टू सी द वेरिएंस ऑफ दिस गिवन डेटा. Next is probability. Now probability also you have learned in your schools. Probability तो calculate करेंगे probability of an event and we are going to learn about the conditional probability. अब देखते हैं ये क्या है. Probability, अगर आपके पास कोई event है, suppose you are given a event, अगर ये इवेंट अगर पॉसिबल है, सपोज ए इज द गिवन इवेंट, वॉट एवर इज द इवेंट, एस इज द सैम्पल स्पेस, तो हमें चाहिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट. सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, एंड दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट. लेकिन अगर आपको दिया है कि दो इवेंट है, एक इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है, और अगर एक इवेंट है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करना है देन दैट इज कॉल्ड एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अगेन इन बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस इज न्यू लिटिल फॉर यू. विल सी हाउ इट वर्क्स व्हेन वील कम टू द लेसन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पेपर 1. ये पार्ट 1 के लेसन्स है. नाउ विल सी अबाउट पार्ट 2. सो दिस इज द टेक्स्ट बुक ऑफ आवर पार्ट 2 पेपर. So part 2 का टेक्स्ट बुक ऐसा है. दिस इज द कवर पेज. Now this is the index of our part 2 lesson. Again here you are going to study 9 lessons. Again we'll see what are the content of each and every lesson here. So now let's look at the content of each and every lesson. The first lesson is a complex number. Now here we are going to understand the set of complex number and the different ways of एक्सप्रेसिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आपने रियल नंबर्स तो देखा होगा और आपने एक फॉर्मूला लर्न किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. सपोज यू आर गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और अगर आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो आपके पास मेथड था फैक्टराइजेशन. अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता है तो आप फॉर्मूला यूज करते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. सो दिस वॉज द फॉर्मूला दैट यू हैव लर्न. लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे
राइट अगर ये रूट के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो आप उसका रूट निकाल सकते हो, लेकिन जब कभी यहाँ पे रूट के अंदर आपको नेगेटिव साइन मिल जाता था तो आप लिखते थे द रूट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव साइन चला गया। तो ये जो नंबर्स है एक्चुअली ये रियल नंबर लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन किसी और सिस्टम में ये एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। Okay, so we'll study how to write a complex number, then we are going to see how are the algebraic operations done on the complex number, मतलब addition कैसे करते हैं, subtraction, multiplication, division, everything we'll study over here. Then we are going to simplify the algebraic expression involving the complex numbers. तो अगर आपके पास ये complex number दिया है तो इसका square root, cube root कैसे निकालना है वो सब हम देखेंगे in this lesson. नेक्स्ट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज लेसन आपने थोड़ा सा लर्न किया है, सो हियर वी आर गोइंग टू रिवाइज द एपी, लर्न जीपी। ये जीपी आपके लिए नया है और एचपी भी आपके लिए नया है। एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो आपने लर्न किया हुआ है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस फॉर्मूला यू हैव लर्न। तो इसके लिए sn वाला फॉर्मूला भी आपने लर्न किया था, उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स सीखे थे। सो दिस लेसन आल्सो रिवाइज दिस थिंग। और इसके अलावा अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसके लिए हम tn कैसे निकाल सकते हैं, sn कैसे निकाल सकते हैं फॉर hp एज वेल एज gp, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन। Then we are going to find the general term and the sum of the first n term of this sequence. Sum of the first n term मतलब होता है Sn, और लेकिन अगर जनरल टर्म है तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ दिस जनरल टर्म्स ओवर हियर। So this is all about the sequence and series. Next lesson that we are going to study is permutation and combination. Now this is a totally new lesson for you. अब ये क्या है? So here we are going to see count the number of arrangements of given object satisfying specific condition, and then we are going to study count the number of possible selection of objects with certain condition. तो अब ये फर्स्ट पार्ट क्या है और ये सेकेंड पार्ट क्या है, दिखने में दोनों भी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे कि अगर आपके पास 4 पेन दिए हैं और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन दिए और आपको बोला कि इसको आप अरेंज करो, तो जो कलर आपको अच्छा लगता है उस हिसाब में आप इसको अरेंज करोगे। तो ये जो अरेंजमेंट आप कर रहे हो तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन। Next we are going to see about combination. Now what do we mean by combination? Now again you are given these 4 pens and now you are asked to select few pens. जैसे कि आपको बोला जाए कि ये 4 में से आपको सिर्फ 2 ही पेन लेने हैं, मतलब आप क्या करोगे, आप देखोगे ये 4 पेन में से मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ कंडीशन दिया रहेगा, जैसे कि अगर आपके पास 4 पेन है, एक है रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, एंड देन यू हैव अ ग्रीन पेन, और अगर आपको कंडीशन दिया है कि आपको एक ब्लैक पेन लेना है और ग्रीन पेन लेना है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि आपको ये 2 ही पेन लेने हैं। सो दीज आर द कंडीशंस गिवन टू अस। सो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ले रहे हो ऑब्जेक्ट, यू आर सिलेक्टिंग सम ऑब्जेक्ट्स, यू आर चूजिंग सम ऑब्जेक्ट्स, देन दैट इज कॉल्ड एज अ combination. I hope you have understood what is the combination and what is the permutation. तो इसके ऊपर के examples हम देखेंगे when we'll study about permutations and combination. After that, the next lesson that we are going to study is the binomial theorem. वैसे binomial theorem आपने थोड़ा सा use किया हुआ है, but before that we'll be studying about method of induction. Now what is this method of induction? So first we are going to understand the method of induction and then we are going to apply it to verify the mathematical statements. अब method of induction क्या होता है? Now method of induction is where you cannot prove द गिवन कंडीशन या फिर गिवन जो स्टेटमेंट है उसको आप इजीली नहीं प्रूव कर सकते, देन यू गो फॉर द मैथमेटिकल इंडक्शंस। इंडक्शन में क्या होता है, पहले आप देखोगे 1 के लिए वो ट्रू हो रहा है, 2 के लिए वो ट्रू हो रहा है, उसी तरह से अगर वो k तक के लिए ट्रू हो चाहे कोई भी स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट अगर k+1 के लिए आप प्रूव कर रहे हो, देन यू कैन से दिस होल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स, सो इट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या कर रहे हो, एक कंडीशन को 1 के लिए, 2 के लिए और k तक के लिए आप देखोगे ये प्रूव हो रहे हैं,
और k+1 के लिए प्रूफ कर दोगे तो आप किसी भी वैल्यू के लिए ये बता सकते हो. नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस इज लिटिल डिफिकल्ट व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस, लेकिन जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंडक्शन. अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम. नाउ बाइनोमियल थ्योरम ने आपने ये तो लर्न किया है a प्लस बी होल स्क्वायर. So we know what is a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square. Then we have also seen what is a plus b whole cube. So a plus b whole cube हो जाता है a cube plus this is 3 times a square b plus 3 times ab square plus b cube. ये आपने फॉर्मूला करके लर्न किए थे और अप्लाई किए थे, राइट लेकिन अगर 2 के लिए पूछा, 3 के लिए पूछा, सपोज मैंने 4 के लिए पूछा आपको, या 5 के लिए पूछा, 6 के लिए पूछा, तो आप कुछ भी करके इसको निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल. लेकिन अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज a प्लस बी रेज टू 33, देन देर इज अ प्रॉब्लम, देन यू कैनॉट फाइंड आउट. जैसे ही ये नंबर बड़ा हो जाता है ये फॉर्मूला आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे फाइंड आउट करें, और इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करना इजी नहीं है. सो फॉर दैट वी कम टू द बाइनोमियल थ्योरम. ये बाइनोमियल थ्योरम की वजह से ये 2 फॉर्मूले आपको मिले हैं, ना कि ब्रैकेट ओपन करके मिले हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बाइनोमियल थ्योरम. तो हम स्टडी करेंगे एक्सपांडिंग द बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स जनरल टर्म. देन विल सी सिंप्लीफाइंग द बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर नेगेटिव इंडेक्स और द फ्रैक्शनल पावर. जैसे कि अगर आपको दिया है a प्लस बी रेज टू -2, या फिर आपको पूछा है a प्लस बी रेज टू 1/2, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज द सेट एंड द रिलेशन. अब इसमें से सेट आपने किया हुआ है, राइट. सपोज यू आर गिवन अ सेट ए में एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4. देन यू आर गिवन अ सेट बी में दिया है 1 3 एंड 2 1 3 एंड से 21. अगर ये सेट आपको दिए हुए हैं और आपको फिर दिस इज हाउ वी हैव सीन द सेट्स, then how to work with these sets, how to do the operations on the set, how to construct the set from the given conditions. These all things we are going to study in this lesson set, and then we are also going to solve problems on application of set theory. So these all things we will be studying in set. Now relation is a little new lesson to you. You don't know the concept of a relation, but as and when we come to the relation you will understand what is this. So first we are going to see what are the types of relation, and we are going to identify those relation. Then we are going to study the equivalence relation. जैसे कि अगर आप ये 2 सेट देखो तो ये 2 सेट में 2 एलिमेंट्स तो कॉमन दिख रहे हैं, राइट तो ये दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन बन रहा है. So these are how we are going to study about relations. Relation different types के होते हैं. These are things we'll be studying in relations. Let's see the next part. Next we are going to see is the functions. अब ये functions क्या होता है. Now in the functions we are going to see how the functions work. अब ये functions कैसा है, जैसे हमने देखा set और relation, तो ये जो relations हमारे हैं ये relation की वजह से हमें मिलते हैं ये सारे functions. So these are the functions that we are going to see. So functions में we are going to see what are how the functions are defined on the domain. Domain मतलब ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया हुआ है, ये functions के बारे में हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट we are going to identify the different types of functions. तो relations कैसे है इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाते हैं हमारे functions, और functions में भी different type के functions होते हैं that we are going to see. And then we are going to carry out the algebraic operations on the functions. मतलब addition, subtraction, all these things will be studying in the functions. Now these all are new lessons to you. ये चारों के चारों पूरे नए लेसन हैं. नेक्स्ट कम्स द लिमिट. अब जैसे हमने ये फंक्शन देखा तो ये फंक्शन जो है ये कुछ तो वैल्यू लेगा, राइट तो अगर आपको कुछ एक्स के वैल्यूज दिए हैं तो ये एक्स के वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स टाइप का होता है, तो ये एफ एक्स कुछ वैल्यू लेने वाला है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या लेगा, या फिर ये पूरे इंटरवल में
ये वैल्यू क्या लेने वाला है वो हम स्टडी करेंगे इन आवर लिमिट्स. So limit, we are going to understand the concept of limit of a function. Then we are going to determine the limit of the function if they exist. अगर function exist कर रहा है तो उसका value कैसे है वो हम find out करेंगे in limits. अब ये लिमिट्स है, इसका एप्लीकेशन होता है कंटिन्यूटी. सो कंटिन्यूटी इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट. तो अगर आपको ये लिमिट्स आता है देन यू कैन सी द कंटिन्यूटी. अब ये फंक्शन कैसा होता है, अगर हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया तो ये हमारा फंक्शन है सपोज, तो हो सकता है कि ये फंक्शन डायरेक्टली ऐसा ही है या फिर हो सकता है ये फंक्शन के बीच में कहीं पे गैप आ गया, राइट. तो अगर ये फंक्शन इस तरह से डायरेक्टली जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन. अगर इसके अंदर ऐसा कुछ गैप आ गया तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. तो ये कैसे है, तो ये हम स्टडी करेंगे इन आवर कंटिन्यूटी. सो वी आर गोइंग टू डिफाइन एंड स्टडी द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड इन अ इंटरवल. तो एक पॉइंट के लिए भी हम स्टडी करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे फाइंड आउट करना है हमारा फंक्शन कैसा है तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे in this continuity. And the last lesson that we are going to study is the differentiation. अब ये अगर लेसन आप देखो, कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो अभी हमने क्या देखा कि लिमिट क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन का कुछ तो एक वैल्यू ले रहा है. तो ये जो इसने वैल्यू लिया है ये वैल्यू को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. सो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अवर गिवन फंक्शन. सो हियर डिफरेंशिएशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन. देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस फंक्शन. अब फंक्शंस के भी तो हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, तो हर एक फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसका लिमिट कैसे होता है हम देखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. सो दीज 4 लेसन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज वेल एज इफ यू लुक एट, इफ यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर लेसन, लेसन नंबर 9 डिफरेंशिएशन. ये लेसन आपको 11th स्टैंडर्ड में भी दिख रहा है, ये 12th स्टैंडर्ड में भी है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको लिमिट नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. सो दीज लेसन्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो दिस इज ऑल द लेसन्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ये तो हमारे लेसन्स हो गए. अब जितने हमने लेसन्स लर्न किए हैं उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल्स भी लर्न करेंगे. विल बी हैविंग प्रैक्टिकल्स आल्सो. सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेसन, या फिर अगर हम हमारा पेपर का फॉर्मेट देखेंगे, फाइनल एग्जामिनेशन में थियरी पेपर होता है. थियरी पेपर विल कंटेन 80 मार्क्स एंड द प्रैक्टिकल्स विल बी ऑफ 20 मार्क्स, और ये दोनों को प्लस करके होता है 100 मार्क्स. सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज डन. So theory is 80 marks, practical is 20 marks, and that comes out to be the paper is of 100 marks. अब पार्ट 1 पार्ट 2 दो अलग अलग टेक्स्ट बुक है, लेकिन जब इसका पेपर आता है तो पेपर दोनों का साथ में ही आता है. ऑल दिस पार्ट थियरी, ये जो इसका पेपर का है, पेपर पैटर्न का जो भी फॉर्मेट है, दैट आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन. Okay, so I hope you have understood what all things we are going to study in our 11th standard. So this is all the lessons that we are going to study. So students, will stop over here for the day. Have a nice day and thank you.